Now we are moving towards our next topic, which is general principles of development. Here I will share with you some principles. Firstly, development is a continuous process, and development does not stop at any time. It continues from moment of conception until the individual reaches maturity. It takes place at a slow or rapid rate, but at a regular pace rather than by leaps and bounds. But it doesn't mean कि इसमें कोई break नहीं आएगा. There may be a break in the continuity of growth due to illness, starvation, or malnutrition, or other environmental factors, or maybe there are some abnormal conditions in the child's life. So the development can be stopped for some time due to some factors, but we have to understand the principles of development also. For example, speech does not come overnight, alright? So it has gradually developed from the cries and other sounds made by the baby at birth. Basically, he will learn that language from basics to the specific. Next principle is development follows a pattern. Like development occurs in orderly manner and follows a certain sequence. Alright? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं होता कि हमारे जो है कोई एक चीज़ पहले डेवलप हो जाए, हम बोलना पहले शुरू कर दें और चलना जो वो बाद में शुरू करते हैं. ऐसा तो नहीं है ना. हर चीज़ एक पैटर्न के साथ चलती है. लाइक एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो बैठना सीखता है, घुटनों का बल चलता है, फिर उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है और फिर चलता है, और इसी तरह से आगे प्रोसेस होता है. सो जैसे कि ये ग्रेजुअल और एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ चीज़ चल रही है, इसी तरह से डेवलपमेंट भी स्पेसिफिक पैटर्न के साथ चलती है और होती है. Here I also want to mention that in nature we find that every species or organisms follows a pattern of development. The same is the case with human beings. Development occurs in orderly manner and follows a certain sequence which in general is the same for most children. Each stage of development leads to the next. For instance, all children first learn to sit without support before they stand. Similarly, they learn to draw a circle before attempting to draw a square. It's clear now? Okay, come to the second point of this slide. The rate and speed of the development may vary in individual cases, but the sequence of the pattern remains same. Alright? Now I'm moving towards the third principle, which is development proceeds from general to specific responses. It makes from a generalized to localized behavior. In studying the development pattern of children, it is observed that general activity always precedes specific activity. For example, the earliest emotional responses of the newborn are generally diffused excitement, and this slowly gives way to specific emotional patterns of anger, joy and fear. पहले क्या है, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर आती जाती है तो तब वो डिफ्रेंशिएट होती हैं चीज़ें कि व्हेन ही इज़ एंग्री एंड ऑल दैट. ऑलराइट, इवन babies wave their arms in journal, random movements they do before they are capable of such specific responses as reaching for an object. First of all, जो development होगी वो random होगी, diffused होगी, जिसमें कोई pattern नहीं होगा, जिसकी कोई logic नहीं होती. But after some time और gradually we can say कि ये जो development है ये general से specific की तरफ जाती है. Alright? Fourth principle is development involves change. Development is a progressive series of changes. Human being is never static, and we can say that from moment of beginning to the time of death the person is undergoing changes. Alright, either those are emotional, physical, intellectual, or any kind of activity or change is going on. Basically every kind of change is going on in our body. Nature shapes development most clearly through genetic programming.
अल्लाह ताला ने पहले से ही हमारे अंदर जीन्स के थ्रू सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कोड कर दी होती हैं. सो वो प्रोग्रामिंग तो हुई ही होती है जो कि फिर सीक्वेंस के साथ चलती रहती है, जो डिटर्मिन करती है हमारे होल सीक्वेंस को कि जो हमारी डेवलपमेंट में होंगे. और इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस जो उससे मिलती जुलती होंगी. Growth, on the other hand, refers to quantitative changes increasing in size and structure. Development implies both qualitative and quantitative changes, as we have discussed before. Fifth principle is the development is a product of interaction of the heredity and environment. What is heredity? Which is inherited in you. वो खसूसियात जो आपको आपके फादर और मदर से या आपके पेरेंट्स से मिली होती हैं, जो आपकी ज़ात के अंदर ऑलरेडी एनकोडेड है. और एनवायरनमेंट क्या है? जो आउटसाइड सराउंडिंग है हमारी, जो हमारी डेवलपमेंट को ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करती है. सो इफ़ यू कैन लुक एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड, चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. इट मीन्स हम अभी तक सिर्फ बात कर रहे थे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, बट स्टिल वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो किसकी वजह से हो रही होती है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से. हेरिडिटी विच इज इनेट इन अस, इनेट एक्टिविटीज जो होती हैं, ये इनेट जो सलाहियतें होती हैं. और एनवायरनमेंट जो हम पर असरअंदाज हो रहा होता है, हमारी सलाहियतों को इफेक्ट कर रहा होता है, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं. बट इट इज़ not possible to indicate exactly in what proportion heredity and environment contribute to the development of an individual. So we can't say कि environment ज़्यादा effect कर रहा है आपकी development पर, या आपकी heredity जो है वो ज़्यादा strong है, या उसका ज़्यादा असर है. So ये चीज़ जो है वो मैयर करना मुश्किल है. Sixth principle is called as a principle of uniqueness. यूनिकनेस इन अ सेंस के इंसान एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस के ज़रिए डेवलप होता है, जिसमें पैटर्न्स होते हैं डेवलपमेंट के और जो कि सिमिलर होते हैं ऑल चिल्ड्रन में. दे फॉलो द पैटर्न एट देयर ओन रेट. बट डिफरेंस क्या है कि हर बच्चा डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट टाइम लेता है. बेसिकली टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है दोनों तमाम बच्चों में. अगर एक बच्चा 9 माह की उम्र में चलना उठने बैठने की कोशिश कर रहा है तो इट डजेंट मीन कि तमाम बच्चे ही उस एज में चलने लगेंगे. उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं. सो ईच चिल्ड्रन इज अ यूनिक इंडिविजुअल. नो टू चिल्ड्रन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव और डेवलप इन एन आइडेंटिकल मैनर ऑल्दो दे आर ऑफ द सेम एज. आप देखें कि एक क्लासरूम के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी कहीं पर टीच किया हो और आपके सामने 30 या 35 स्टूडेंट्स बैठे हों. अब देखें ऑलमोस्ट वो एक सेम एज के होते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग जो है, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी पर्सनालिटीज़, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इवन उनकी जो लर्निंग लेवल है वो भी डिफरेंट होता है. उनका कद डिफरेंट होता है, उनकी फिजिक डिफरेंट होती है. सो हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर अगर एक ग्रेड 5 का बच्चा है तो वो उस क्लास में पाए जाने वाले तमाम ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसे ही होंगे. ऑलराइट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस के हर बच्चा डिफरेंट है एंड वी हैव टू डील विद देम डिफरेंटली. ऑलराइट. सेवेंथ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. बट इज इट के this is the another important principle of development that it occurs as a result of both maturation and learning. Here we are focusing on the maturation of the child and learning of the child. Maturation refers to the changes in developed organism due to the unfolding ripening of abilities, characteristics, traits and potentialities. Alright, कि जब एक पीक पर पहुंच जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, फुली डेवलप हो जाती हैं, उसकी तमाम एबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और उसके तमाम पोटेंशियल्स, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? मैच्योरेशन का. ऑलराइट. लर्निंग क्या है कि ये चेंज इन बिहेवियर है ड्यू टू द ट्रेनिंग और द एक्सपीरियंसेस विच ही और शी इज गेनिंग. ऑलराइट. दीज आर द टू टर्म्स लाइक मैच्योरेशन एंड लर्निंग.
Maturation is the inner growth process unaffected by the training. Another factor that causes growth is a learning. So we can say that learning implies exercise and experience on the part of an individual. So learning may result from practice, which is due course of time, may bring about a change in individual's behavior. So we can say that learning may result from the practice. Alright. So these were some principles for the human development. So now I'm moving toward the factors influencing human development. हमने पीछे भी एक बात की थी एक जगह कि इंसान की डेवलपमेंट जो है वो उसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं. तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, या मैं ये कहूँ कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत हद तक इंसान की पर्सनालिटी पर असरअंदाज होते हैं. सो उसमें क्या चीज़ आती है, सच उनकी इनकम, education. So income and education is what actually affecting the child development. So what I think, मे बी आप इससे अग्री या डिसअग्री करें, बट मेरा ख्याल ये है कि अगर एक बच्चा पुअर क्लास से बिलोंग करता है और एक बच्चा एलीट क्लास से बिलोंग करता है और अगर एक बच्चा मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो इन तीनों की जो एजुकेशन है उसका मतलब इस क्लास का जो डिफरेंस है वो उनकी डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करेगा. ठीक है, अगर उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है तो उसकी सलाहियतें डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगी, उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, वो अपनी ज़ात को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा जैसे कि उसे करना चाहिए या वो करना चाहता है. इसी तरह से अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसा है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, लेकिन स्टिल ही इज़ अनएबल इन डूइंग सो, तो दोनों की डेवलपमेंट में असर होता है. और ऐसे ही नहीं कहा गया ना कि एक पढ़ा लिखा और जाहिल जो है वो कभी बराबर नहीं हो सकते. अ सेफ कम्युनिटी ऑफर्स अ चांस टू एक्सप्लोर. इनकम इफेक्ट न्यूट्रिशन. अब इनकम कैसे इफेक्ट करेगी? उनकी न्यूट्रिशन को, हाउसिंग को, क्लोथिंग को, टॉयज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम्स. अ पेरेंट्स एजुकेशन ऑब्वियसली और मे इफेक्ट हाउ ऑफन दे रीड टू द चिल्ड्रन. और आपने सुना होगा ना कि एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़ा लिखा माशरा बनाती है. ठीक है, सो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें पता होता है कि किस स्टेज पर बच्चे की क्या डिमांड्स हैं और उसको कैसे टैकल करना है, तो ऑब्वियसली बच्चे की डेवलपमेंट फिर अच्छे तरीके से वो कर पाएंगी. और उनकी उन ज़रूरियात को अगर मद्देनज़र रख कर उन्हें तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आते हैं. इसी तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो उनकी डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें उनकी जेंडर हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, और फीमेल्स एंड मेल्स डेवलप विद डिफरेंट रेट. चिल्ड्रन विद हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज डेवलप डिफरेंटली. न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट चाइल्ड ग्रोथ एंड हेल्थ ऑल्सो. सो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसकी डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो सकते हैं. यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके, वी कैन सी दैट चाइल्ड्स रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. They made some strong bonding with their parents and play and learn with the siblings and peers at school. Some children are involved in Sunday school, daycare, or other social groups also. So these kind of relationships can also affect the development of the student. If I can say that parents have given some kind of liberty to their child, that he or she can share his all the day activities in school with them, so obviously he will feel a kind of shelter or a kind of protection, that like their parents are ready to listen him or her, and they are curious to know that what he or she is doing in their life. So these kind of relationships can affect the development of the student. और अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चे को बहुत डांट डपट के रखा जाता है और उसे इवन कभी घर में बोलने की भी इजाज़त नहीं होती कि आप चुप करके यहाँ बैठे रहो और आपने हिलना नहीं है यहाँ से और आपने ये करना है, और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा जाता है, तो इस तरह की चीज़ें फिर उसकी पर्सनालिटी को डैमेज कर सकती हैं. फर्दर मोर, early sensory experiences also affect the development of the students. Like all 5 senses are involved in the child development and understanding of the world.
सो अगर कोई एक जो सेंस है वो डेवलप नहीं हो पाती या अफेक्टेड होती है तो उसका असर उसकी पूरी ज़ात पर पड़ता है. बात समझ आ रही है ना. अगर फ़र्ज़ करें वो देख नहीं सकता, सुन सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, लेकिन देख नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उसको बाकी चीज़ों के साथ कोप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऑलराइट, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं कि क्या ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है. बेसिकली ये अलग बात है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत सिमिलर रहे और टेक्स्ट जो है उसका जो कंटेंट है वो भी सिमिलर रहता है, लेकिन आप तक ये बात पहुंचाना मकसूद था कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं. ये दोनों चीज़ें ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, जो रेसिप्रोकल होती हैं ना जो चीज़ें, ऐसे ही. इसी तरह से फिर हमने देखा कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में फॉलो होते हैं, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस होती है, यूनिकनेस उसमें पाई जाती है, और इसी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने देखा. वो तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में. फिर हमने बात की कि किस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं इंसान की डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक, इसमें जिसमें एनवायरमेंटल भी थे, बायोलॉजिकल भी थे, और इसी तरह से उसके रिलेशनशिप्स और सेंसरी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी. सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आई एम गोइंग टू सम अप concepts which we had studied in our lecture. First is that growth refers to the change in size and development implies overall changes in individual. And principles of development state that it is a continuous process and it follows the pattern, proceeds from general to specific, and it proceeds at different rates for different parts of the body. There are the individual differences in development also. It is both quantitative and qualitative and it is often predictable. Then we also saw or study that there are internal and external factors that affect the growth and development of the child. Here I also wanted to share with you that there are two main phases of the process of development. The stage or phase of before birth and the stage or phase of after birth. The second phase of life has 4 stages: infancy, childhood, adolescence and adulthood. The period of infancy covers the period from birth to 5 years, childhood from 6 to 12 years, and adolescence from 12 to 18 or 19 years, and each stage of development has its own specific characteristics. And all these characteristics we will study in our next unit, inshallah. So till then, thank you so much and take care, have a good time and happy learning. Allah Hafiz.